Good morning, class 10th. Today we start a new session, that is Unit 1E. This is the E part of your unit first, and in this lesson we learn about green skills second. So session 1 is all about understanding sustainable development. So let's start reading it. In simple terms, sustainable development means the economic development that is achieved without harming and depleting natural resources. ओके, सो द इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो भी आपके कंट्री का एक जगह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है बिना उसके नेचुरल रिसोर्स को हार्म करना मीन्स दैट यू हैव टू नॉट टू कट द ट्रीज, फ्यूल्स का ध्यान रखना है, जो आपके नेचुरल फ्यूल्स हैं इन सब को बिना नुकसान पहुंचाए, मतलब एक लिमिटेड नीड, जितनी नीड है उतना ही यूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद आपकी इकोनॉमी कितनी डेवलप कर रही है, दैट इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. So looking more closely into the term sustainable, it is defined as something that is able to be upheld or defended. Okay, New Oxford American Dictionary 2005. So according to the New Dictionary 2005, it was termed like sustainable means able to be upheld or defended. Next, sustainability is development that take care of the needs. So yeah, sustainability is the development that take care of the needs of the present while be concerned about the future generation, balancing between the economic growth, care for the environment, and social well-being. So what is sustainability? It means that जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं आपको उनको इतना ही यूज़ करना है दैट यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, हाउ मच यू आर यूजिंग एंड हाउ मच यू आर लीविंग फॉर योर फ्यूचर जनरेशन. Okay, so you have to maintain a balance between the present and the future generation. Okay, next is today sustainable development is not an option but necessity. आज के टाइम में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑप्शन नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है. अगर आप ये कहें कि अच्छा ठीक है नेचुरल रिसोर्सेज हैं यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, बट ऐसा नहीं है. मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज वी आर ऑलरेडी यूज्ड. हम वैसे ही अपनी अर्थ को, अपनी मदर नेचर को बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं. सो अब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है दैट वी हैव टू बैलेंस, मेंटेन अ बैलेंस between the use of natural resources for the future generation as well as for the present generation. अब as you can see कि इतने सारे ट्रीज़ कट गए हैं कि फ्लड्स आ जाते हैं. ओके, जगह जगह डैम्स बनाना पड़ता है सो दैट टू स्टोर द वाटर. ऑलरेडी वी आर हार्मिंग आवर रिवर्स, fossil fuels and etc. So it is necessary due to the concern for preserving and enhancing the environment and its biodiversity to ensure a healthy and productive world. Growth and environmental maintenance are simultaneously possible and we are capable of achieving it. So growth and environmental मेंटेनेंस ज़रूरी नहीं है दैट इफ़ वी आर ग्रोइंग और इफ़ वी आर आर डेवलपिंग कंट्री तो हम अपने इन्वायरमेंट को ध्यान ना दें, बट वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस. आपको बैलेंस बना के रखना है, हमें बैलेंस बना के रखना है बिटवीन द ग्रोथ एंड द एनवायरमेंट. Thus, sustainable development demands growth that is environmentally sound to reduce poverty and promote shared prosperity for all and meet the need for the future generation. So sustainable development क्या चाहती है? Sustainable development means एक ऐसी growth जो environmentally मतलब हेल्दी हो, ठीक है, एनवायरनमेंट को अफेक्ट ना पहुंचा हो, पॉवर्टी गरीबी को कम करती हो, और क्या कहते हैं प्रस्पैरिटी को और आपकी जो भी डेवलपमेंट है उसको इंक्रीज़ करती है. प्लस हम कुछ पोर्शन अपने एनवायरनमेंट से अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए
सेव कर सकें. सो द 3 फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर economic development, social development and environmental protection. Okay, you can see a diagram. Here we are having this diagram. If it possible, please draw in your notebooks. Sorry. Just a minute. Okay, here is the diagram. We are having 3 important components for the sustainable development. Okay, the first component is your economic. Okay, the second one is your social, and the third one is your environmental. Okay, so moving ahead, economic development is about providing incentives for businesses and other organizations to adhere to sustainability guidelines. Okay, so आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? जितने भी आपके बिजनेसेस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाना. सेकेंड इज़ द सोशल डेवलपमेंट इज़ अबाउट अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ ऑफ पीपल फ्रॉम पॉल्यूशन एंड अदर हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस. अब सोशल डेवलपमेंट क्या है? सोशल डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट द अवेयरनेस एंड द प्रोटेक्शन दैट यू आर क्रिएटेड. ठीक है, जितनी भी प्रोटेक्शन अवेयर करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनकी हेल्थ को, उनको किसके खिलाफ जो भी आपकी पॉल्यूशन हम लोग फैला रहे हैं आज के टाइम पे, जितनी भी हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस की, इंडस्ट्रीज़ की, बहुत इंडस्ट्रीज़ से बहुत धुआं आता है, बहुत सारा पॉल्यूटेंट्स वाटर में जाता है, रिवर्स में जाता है. सो देयर आर मैनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन दैट आर क्रिएटेड बाय these businesses. So when we are creating awareness and protection of health against these businesses, that is known as the social development. Moving next, environmental protection. So environmental protection is the need to protect the environment, whether the concept of 4 R's. ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में हमारे पास 4 R's होते हैं, और दिस इज़ ऑल यू हैव रेड इन योर SST बुक. ये सारी चीज़ें आपने अपनी SST में या EVS की बुक में कभी ना कभी ज़रूर पढ़ी होंगी. सो 4 R अबाउट रिड्यूस, रिसाइकल, रिकवर एंड रीयूज़. जितना पॉसिबल है पहले तो कम से कम ही यूज़ करें. अगर आप यूज़ कर भी रहे हैं देन ट्राई टू रिसाइकल इट. जो भी आपके पास वेस्ट है उसको रिसाइकल करें. इफ़ पॉसिबल रिकवर इट एंड रीयूज़ इट, फिर दोबारा यूज़ करें. ठीक है, हैविंग अचीव्ड or not, sustainable development encompasses 4 P's, that is people, planet, profit and policy. So people, who represent the social cultural issues, planet, which represent the environmental issues, profit, that represents the economic issue, policies, which refers to visionary political leadership that implements the policy needed to make sustainable development. सो इतना नहीं पढ़ने की ज़रूरत है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि देयर आर 3 फंडामेंटल्स. सो आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पढ़ना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, फिर उसके 3 फंडामेंटल्स कंपोनेंट जो हैं वो पढ़ने हैं. आफ्टर दैट यू हैव, जब आप इन्वायरमेंटल के बारे में पढ़ते हैं, आपके पास 3 कंपोनेंट्स हैं, दैट इज़ इकनॉमी, सोशल एंड इन्वायरमेंट. इकनॉमी कौन सा है, इन्वायरमेंटल कौन सा है एंड सोशल कौन सा है. ठीक है, ये तीनों चीज़ें पढ़नी है. आफ्टर दैट यू हैव टू रीड कि इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंटल में हमारे पास क्या 4 R है. 4 R हमारे पास है रिड्यूस, रिसाइकल, रिकवर एंड रीयूज़. आफ्टर दैट आपको ये पढ़ना है दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारे पास 4 P's होते हैं. 4 P's हमारे पास कौन कौन से हैं? पीपल, प्लानेट, प्रॉफिट एंड पॉलिसी. Next is sustainable development and the world. So let's have it. On 1st November 2016, the 17th Sustainable Development Goal of 2030 Agenda for Sustainable Development adopted by world leader in September 2015 at an historic UN summit officially came into force.
poverty in all its form and dimensions is an indispensable requirement for sustainable development. There must be promotion of sustainable, inclusive and equitable economic growth, creating greater opportunities for all, reducing inequalities, raising basic standards of living, fostering equitable social development and inclusion, and promoting integrated and sustainable management for natural resources and ecosystem. So on 1st January 2016 हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए थे दैट आर नोन एज 17 SDGs. Okay, so in this we are promoting like promotion of sustainable, ठीक है, गरीबी हटानी है, नेचुरल रिसोर्सेज को सही से यूज़ करना है, अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका बढ़ना चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए. ओके, so let's read about 17 SDGs are complete poverty eradication, मतलब गरीबी हटानी है, ज़ीरो हंगर, भूखमरी नहीं होनी चाहिए, गुड हेल्थ एंड वेलबींग. ओके, नेक्स्ट इज़ क्वालिटी एजुकेशन, सबको मिलनी चाहिए और अच्छी मिलनी चाहिए. ओके, सो एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी जो सबके लिए होनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, सफाई और अच्छा पानी must be available to each and everyone. 7th one is affordable and clean energy, जिस भी फॉर्म ऑफ एनर्जी आपको मिल रही है, देयर आर मैनी फॉर्म ऑफ एनर्जी वेदर ओके, तो वो इसमें होनी चाहिए कि हर इंसान अफोर्ड कर सके. एंड सेकेंड थिंग वो क्लीन होनी चाहिए. 8th वन इज़ डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए, प्लस आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम इफ़ेक्ट करें. 9th one is industry, innovation and infrastructure. 10th one is reduces inequality, जूनियर सीनियरिटी का हिसाब किताब नहीं होना चाहिए, अमीर गरीब का हिसाब किताब नहीं होना चाहिए, कास्टिज्म नहीं होनी चाहिए, किसी भी टाइप की कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट इज सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़. नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जब भी आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इतना ध्यान रखिए कि दैट यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट एक्शंस, लाइफ बिलो वाटर, सिर्फ उनके बारे में नहीं सोचना है जो लोग ज़मीन के ऊपर हैं, इवन यू हैव टू वंडर अबाउट द फिशेज़ एंड द अदर वाटर बॉडीज़. नेक्स्ट इज़ लाइफ ऑन लैंड, इसमें आपके इकोसिस्टम्स आ जाते हैं, आपके फॉरेस्ट आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आ जाते हैं, इन सब के लिए. नेक्स्ट इज़ पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन. ओके, नेक्स्ट इज़ पार्टनरशिप फॉर द गोल्स. एक और चीज़, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने SST में रीड की हैं, जस्ट गो थ्रू देम वंस अगेन. ईजी चैप्टर है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें ध्यान रखें. सो देयर आर 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस. फर्स्ट इज डिफाइन द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्टार्टिंग में ही बता दिया है. व्हाट आर द 3 फंडामेंटल्स component or the pillar of the sustainable development? The question can be framed in 2 form. What are the 3 fundamental components, or it may be what are the 3 pillars of sustainable development. So no need to confuse अगर आपको दोनों फॉर्म में से किसी भी एक फॉर्म में क्वेश्चन मिलता है. Next one is what are the 4 P's of the sustainable development? Explain them briefly. Fourth point is what is UN Sustainable Development Program 2030? So it is mentioned here and you have to just copy down in your notebook. Next is 5th, go to https www.un organization sustainable development goal and read more about UN's SDGs. Okay, so each one of you have to visit this site and जो भी आप इसमें से पॉइंट रीड करते हैं, just make a small notes or summary, and this one is a assignment or you can say a small project related to this chapter. Thank you students.